اگر نا میں کسی چائنیز شخص کے سامنے پنجابی میں بات کروں تو وہ میری بات نہیں سمجھ سکے گا. اسی طرح خدا باپ اگر ہم سے، انسانوں سے، فرشتوں کی زبان میں بات کریں تو شاید ہم بھی نہ سمجھ سکیں. اس لیے خدا باپ جو ہے وہ ہمارے لیول پہ آ کے ہم سے بات کرتا ہے، یعنی جس کو ہم سمجھ سکیں. اور خدا کے بات کرنے کے اور بولنے کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو پہاڑ تھر تھر آتے ہیں، ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں. یہ اس کی ایک الوہیت کو یہ بات ظاہر کرتی ہے. لیکن جب وہ خاکسار سے بات کرتا ہے تو وہ خاکسار کے لیول پہ آ جاتا ہے. دیکھیں نا، جب خدا نے سیموئیل سے بات کی تو خدا سیموئیل کے لیول پہ آ گیا، اور سیموئیل کو 2 دفعہ اس بات کا گمان گزرا. سیموئیل نے سمجھا کہ یہ کوئی انسان مجھ سے بات کر رہا ہے. وہ 2 دفعہ ایلی کے پاس گیا اور ایلی سے کہتا ہے کہ تو نے مجھے پکارا ہے. وہ کاہن کے پاس گیا، یعنی خدا کی آواز بالکل سیموئیل کے لیول پہ تھی، یعنی انسانوں جیسی خدا کی آواز تھی. خدا نے اس زبان میں اس سے آ کے بات کی. اور اسی طرح دیکھیں نا، جب آسمان کی بادشاہی کو، جنت کو اور فردوس کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے نا ایک بڑی اچھی مثال دی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فردوس کے میں، جنت میں، خدا کی بادشاہی میں سونے کی سڑکیں ہوں گی. اور میں کہتا ہوں کہ سونے کی سڑکیں بتانے کا کیا مقصد ہے؟ سونے کی سڑکیں بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اس کو بہترین طریقہ سے سمجھ سکیں. سونا جو دنیا میں مہنگی ترین چیزوں میں شامل ہوتا ہے، بتایا گیا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں وہ آپ کے پیروں کے نیچے ہوگا، وہ ایمانداروں کے پیروں کے نیچے میں ہوگا. یعنی یہ بات سمجھانے کے لیے کی جا رہی ہے. اور آج جو ہمارا موضوع ہے نا، غزل و غزلات پارٹ 2، اس میں اس کا غزل و غزلات، اس کا باب 8 اور اس کی 6 اور 7 آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے. سانگ آف سانگز چیپٹر 8 ورس 6 to 7. اور اس میں ایک خاص بات کا، عشق کا ذکر کیا گیا ہے کہ عشق جو ہے وہ موت کی مانند زبردست ہے. عشق کو سلاب نہیں بجھا سکتا، عشق کو باڑ نہیں دبا سکتی. اور یہ عشق، اور NIV بائبل میں نا اس کے لیے لو لکھا ہے، یعنی اس لو کو، اس عشق کو، عشق پیار کو جو ہے وہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اور کس چیز کو؟ خدا کے عشق کو. یہ خدا کے پیار کی بات کی جا رہی ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ موت کی مانند زبردست ہے. تو عشق کیا ہے؟ عام زندگی میں آپ دیکھیں نا، عشق یا لو یہ کیا چیز ہے؟ کسی کا ہر وقت خیال رہنا، کسی کی فلاح و بہبود چاہنا، کسی کو اپنانا، یہ عشق ہے. اور میں اردو لغت میں دیکھ رہا تھا تو اردو لغت میں اس کے لیے نا بڑا اچھا ایک کافی میننگ لکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک میننگ اس کا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ عشق عادت، یعنی آپ کی ذات کا حصہ محبت جو ہے اسے بھی عشق کہتے ہیں. اگر کوئی چیز آپ کی ذات کا، کسی چیز سے آپ کسی چیز کو اس طرح اپنا لیتے ہیں. اور یہاں جس عشق کی بات کی جا رہی ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ خدا کے عشق اور خدا کی محبت کی بات کی جا رہی ہے کہ خدا جو اپنے لوگوں سے عشق اور محبت رکھتا ہے اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. اور اس کے بارے میں نا بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اس عشق کو ہے جو ہے نا وہ سلاب دبا نہیں سکتا. سلاب کیوں نہیں دبا سکتا؟ اور اس عشق کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ موت کی مانند زبردست ہے. موت کی مانند زبردست ہے. موت کی مثال دی گئی ہے. موت کی کیوں مثال دی گئی ہے؟ یعنی دیکھیں نا، جب انسان مر جاتا ہے، جب قبر میں انسان چلا جاتا ہے تو کیا قبر کبھی اپنے مردے کو چھوڑتی ہے؟ یعنی یہ اس قدر زبردست ہے کہ یہ کبھی نہیں چھوڑتا. اور اگر آپ دیکھیں نا تو ایک دفعہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ شریعت کی پابندی کے بارے میں جب بات کی جا رہی تھی تو شریعت کی پابندی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب خاوند مر جاتا ہے تو عورت تب اپنے خاوند کی شریعت سے آزاد ہو جاتی ہے. دراصل یہ ربیوں کا نظریہ تھا کہ ایک اسرائیلی یا ایک یہودی جو ہے وہ مر کر ہی شریعت سے آزاد ہوتا ہے. وہ تب تک شریعت کا پابند ہوتا ہے جب تک وہ مر نہیں جاتا. لیکن اس عشق اور اس محبت کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ تو موت کی مانند زبردست ہے. موت کی مانند کیوں زبردست ہے؟ کیونکہ قبر کبھی اپنے مردے کو نہیں چھوڑتی. وہ اس کے ساتھ، اس کے عناصر کے ساتھ مل جاتا ہے کیونکہ وہ مٹی میں سے لیا گیا ہے. اس لیے عشق کو جو ہے وہ موت کی مانند زبردست کہا جا رہا ہے. اور یہ خدا کا عشق ہے. یہ خدا نے کیسے کیا؟ خدا نے، دیکھیں نا، میں کہتا ہوں کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا. اور جب خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا تو بیٹا کیسا تھا؟
بیٹا اتنا وفادار رہا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اس قدر وفادار بیٹا رہا اور اس کے مر جانے سے اس کی محبت کی وجہ سے ہم نے نجات پائی. اور اس نے وہ کیسا وفادار رہا, وہ کیسا, یہ خدا کی کیسی محبت ہے, یہ کیسا عشق ہے. اور اسی عشق کی وجہ سے وہ انسان بن کے زمین پہ آ گیا. اس نے ہماری خاطر صلیب پر میری اور آپ کی سزا برداشت کی. اس نے مجھے اور آپ کو نجات بخشی. اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ غور کریں تو میں نے اور آپ نے جو نجات پائی ہے نا, وہ اس عشق اور لو کی وجہ سے پائی ہے. خدا کو مجھ سے اور آپ سے عشق تھا, انسانوں سے عشق تھا, پیار تھا, اور ایسا عشق تھا جسے موت کی مانند زبردست تھا, جسے سیلاب نہیں دبا سکتا تھا, جسے باڑھ نہیں دبا سکتی تھی. باڑھ کے لیے ہے کہ واٹر آف ریورز, یعنی سیلاب اسے بجا نہیں سکتے, اور پانی جتنے مرضی دنیا میں آ جائے وہ اسے دبا نہیں سکتے. ایسا عشق تھا. یہ خدا کا عشق تھا جو اس نے, جس عشق میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا, اور اس کے بیٹے نے آ کے میری اور آپ کی سزا اپنے اوپر لے لی. وہ انسان بن کے آ گیا. یہ عشق کی انتہا تھی. یہ موت کی مانند زبردست عشق تھا کہ اس نے میری اور آپ کی سزا لے لی, میری اور آپ کی اس نے شفاعت کی. وہ مجھے اور آپ کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ مفت میں راست باز ٹھہرانے آیا تھا. یہ اس خدا کا عشق ہے میرے اور آپ کے لیے. میرے اور آپ سے اس قدر عشق کیا گیا. اور مجھے اور آپ کو, میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لو اس کے لیے انگلش بائبل میں لفظ استعمال ہے. اور دیکھیں نا, یہ خدا کا پیار ہے, یہ خدا کی محبت ہے جو مجھ سے اور آپ سے کی گئی ہے. دنیا کے مذاہب میں آپ دیکھیں نا, کسی مذہب کا پیروکار یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر اس کے نبی کی زندگی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک مسیحی کہہ سکتا ہے, ایک مسیحی کہہ سکتا ہے کہ اس کے اندر اس کے مسیح کی زندگی ہے, کیونکہ مسیح نے اپنی زندگی دے کے اس محبت کو, اس عشق کو, اس لو کو نبھایا ہے اور اس میں ہمیں قائم کیا ہے. اس لیے ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ہمارے مسیح کی جو ہے وہ زندگی ہے. کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے, کبھی کسی نے اپنی زندگی سے کہا کہ تو تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے الگ ہو جا, یا کبھی کسی نے اپنی زندگی کو اپنے آپ سے الگ کیا ہے؟ تو کیا ہوگا اگر کوئی اپنے آپ سے زندگی کو الگ کرے گا یا زندگی سے الگ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کا انجام موت ہوگی, اس کا انجام رسوائی ہوگی, اس کا انجام کچھ بھی نہیں, خاک میں مل جانا ہوگا. اس لیے یہ خدا کی محبت ہے جو اس نے مجھ سے اور آپ سے کی ہے. آپ دیکھیں نا, خدا کی جو خاص خوبیاں بیان کی جاتی ہیں, جو ڈیوائن کریکٹرسٹکس بیان کی جاتی ہیں, ڈومینیٹ جو خدا کے کریکٹرسٹکس ہیں, ان میں ایک خوبی یہ بیان کی جاتی ہے کہ خدا محبت ہے. خدا محبت ہے. یہ بات بچائی جاتی ہے کہ یعنی اس قدر یہ اہم بات ہے, اور بائبل اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ خدا محبت ہے. کیوں خدا محبت ہے؟ کیونکہ وہ ہم سے عشق کرتا ہے, کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے, اور یہ اس کی ایک ڈومینیٹنگ کریکٹرسٹکس ہے کہ وہ انسانوں سے پیار کرتا ہے. وہ ان کی فلاح و بہبود چاہتا ہے, وہ ان کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں نا تو کیوں یہ تو خدا نے ہم سے پیار کیا اور خدا نے ہم سے عشق کیا. اس میں ہماری تو کوئی خوبی نہیں تھی. یہ اس کا پیار ہے جس کو سیلاب نہیں دبا سکتا, جس کو سیلاب نہیں بجھا سکتا, جس کو باڑھ نہیں دبا سکتی, اور جو موت کی مانند زبردست ہے. لیکن ہم اس عشق کے رسپانس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اسے کیسے پیار کر سکتے ہیں؟ پہلے تو اس نے ہمیں پیار کیا ہے. ہم اس پیار کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ میں نے اور آپ نے جو نجات پائی ہے وہ اس عشق کی وجہ سے, جو موت کی مانند زبردست ہے, جسے سیلاب بجھا نہیں سکتا, اس عشق کی وجہ سے میں نے اور آپ نے نجات پائی ہے. اور اسی لیے بائبل پکار کے کہتی ہے کہ خدا محبت ہے. یہ اس کا پیار ہے, اور اس پیار کا, اس نے ہم سے پہلے پیار کیا ہے. ہم اس پیار کا کیسے رسپانس دے سکتے ہیں؟ ہم کیسے اسے پیار کر سکتے ہیں؟ کیسے پیار ہم اسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ دیکھیں یوحنا کی انجیل, اس کا 14واں باب, اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. یعنی اگر ہم
अपनी मोहब्बत का खुदा के साथ दावा करते हैं, अगर हम अपनी मोहब्बत का खुदा के साथ दावा करते हैं कि हम भी तुझे प्यार करते हैं, या अगर हम इस इश्क का हिस्सा बनना चाहते हैं जो लाजवाल है, जिसे सलाब नहीं बुझा सकता, जिसे बाढ़ नहीं दबा सकती, जो ऐसा इश्क है जिसे किसी किस्म की भी कोई दुनिया की चीज़ है जो वो हरा नहीं सकती, और जो मौत की मानद ज़बरदस्त है, जिसने हमें अपने साथ एक कर लिया है, उस इश्क का हम जवाब कैसे दे सकते हैं, या हम उस इश्क का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। बाइबल अभी मैंने आपके सामने गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 14 और उसकी वर्स 16 पढ़ी है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करके, उसके हुक्मों पर जब हम अमल करेंगे तो ये हम उसके प्यार का जवाब दे रहे हैं, ये हम उसकी मोहब्बत का जवाब दे रहे हैं। यानी ओबीडियंस, ताबेदारी जो है, ये उसकी मोहब्बत का जवाब है। फिर हम इस इश्क और इस प्यार का, जिसे सलाब नहीं बुझा सकता, फिर हम इसका हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि हम इस इश्क जब करेंगे, हम जब इस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देंगे तो हम उसके साथ एक हो जाएंगे। फिर ये मौत की मानद ज़बरदस्त होगा। जैसे मौत और कब्र एक हो जाते हैं, ऐसे ही मैं और आप एक हो जाते हैं। इससे पहले भी आप देखें ना, गज़ल व ग़ुज़लात में दुल्हे और दुल्हन की मोहब्बत को जो है वो एक होने से, जिस्म के एक होने से, बल्कि बाइबल में यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि जिस्म के एक होने से तशबीह दी गई है, बताया गया है दुल्हे और दुल्हन के प्यार से, उन्हें भी एक तन कहा गया है। यहाँ भी मौत का जिक्र किया जा रहा है कि ये मोहब्बत जो है ये मौत की मानद ज़बरदस्त है, क्योंकि मौत कभी अपने मुर्दे को नहीं छोड़ती, वो उसके अनासर के साथ एक हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम यहोवा खुदा के साथ, हम उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी मोहब्बत में एक हो जाएं, जो हमारे लिए मर गया, जिसने जान दी, उसके साथ उसकी मोहब्बत का रिस्पॉन्स दें, उसकी मोहब्बत का, हम उसकी मोहब्बत को कैसे मोहब्बत के बदले में मोहब्बत करें, तो उसके लिए यह है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, ताबेदारी करें। ये यूहन्ना की अंजील में मेरे और आपके लिए पैगाम है कि जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो फिर हम उससे मोहब्बत का इजहार करेंगे। ये हमारी मोहब्बत का इजहार है। यानी ताबेदारी का हर अमल जो है वो उससे मोहब्बत है, और ताबेदारी का हर अमल जो है ये हमारा ईमान है। यानी ये एक रिश्ता कायम इससे हो जाता है। जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो ये हमारा ईमान होगा, और इससे हमारा रिश्ता हमारे खुदा के साथ हो जाएगा। इसलिए आप देखें ना, मुझे और आपको ये करने की ज़रूरत है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, ताकि हम इस लाजवाल मोहब्बत का हिस्सा बन जाएं। आप कलाम मुकद्दस में से देखें, लोग यूसुफ के बारे में देखें कि जब वो जानता था, यूसुफ की ज़िंदगी पर आपने देखा होगा, एक करैक्टर है यूसुफ पुराने अहदनामा में, तो यूसुफ के बारे में आप जानते हैं, वो जान गया था ये बात कि वो जिससे वो इश्क करता है, या जिसने उससे इश्क किया है, लव किया है, प्यार किया है, वो ऐसा ज़बरदस्त है कि उसे सलाब नहीं बुझा सकता। इस इश्क को, इस मोहब्बत को कोई चीज़, कोई बाढ़ नहीं उसे दबा सकती। और देखें, जब उसने यूसुफ अपनी ज़िंदगी में वफ़ादार रहा खुदा के साथ, और जब उसने उसके हुक्मों पर अमल किया तो क्या हुआ, वो सरफराज होता गया। उसके बारे में लिखा है कि जिस काम को वो हाथ लगाता था वो उसके लिए बाइसे बरकत होता जाता था। और देखें, बार बार उस पर सलाब आए, क्या उसके इश्क को बुझा सके? कुएं में गिराया गया, मौत का सलाब आया, वहाँ से निकला पोतीफार के घर गया, वहाँ उस पर आजमाइश का सलाब आया, क्या उसे दबा सका? नहीं। क्यों ना उसे दबा सके? क्योंकि वो जानता था कि मेरी ताबेदारी जो है वो उस मोहब्बत का जवाब है, और जब मैं उस मोहब्बत का जवाब दूंगा तो ये दुनिया के सलाब, ये दुनिया की मुश्किलें, परेशानियाँ, तंगियाँ, परसिक्यूशन, कोई चीज़ मुझे नहीं दबा सकती। और जब वो वफ़ादार रहा, और जब वो इस इश्क और इस लव का यूसुफ हिस्सा बन गया तो क्या हुआ? वो पोतीफार के घर में नौकरों का मुलाजम था, और बड़ा मुलाजम बन गया? नहीं। वो उनका और बड़ा ओवरसीयर बन गया? नहीं, बल्कि वो उस वक्त की सुपर पावर मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन गया। ये है, ये जब आप इस इश्क से, इस इश्क का, इस मोहब्बत का जवाब देंगे, मोहब्बत से देंगे, ताबेदारी है आपकी। मोहब्बत जो है, आपने जो खुदा से मोहब्बत करनी है वो ताबेदारी है। फिर आप उसके साथ उस इश्क में एक हो जाएंगे, और फिर आपको सलाब जो है वो बुझा नहीं सकेंगे, फिर बाढ़ आपको दबा नहीं सकेंगी। इसी तरह कलाम खुदा में से देखें ना, पौलुस और सलास के बारे में देखें। पौलुस और सलास जब कैद में थे तो क्या हुआ? वो तो ऐसा उनका रवैया था कि जैसे वो महबूब की गोद में हो, जैसे वो अपने लवर और बिलव्ड हैं,
इस तरह वो उसकी हमदो सताइश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि हम जिससे प्यार करते हैं, हम जिससे हमने प्यार का सबूत ताबेदारी करके उसके हुक्मों पर अमल करके दिया है, उसे बाढ़ नहीं दबा सकती, उसे सैलाब नहीं बुझा सकता। इसलिए वो इस कदर मुतमय्यन थे। इसलिए अगर आप चाहते हैं, मैं और आप चाहते हैं कि हम उस इश्क का हिस्सा बन जाएं जिसे सैलाब ना दबा सके, जिसे दुनिया के परेशानियों के सैलाब, परसिक्यूशन, जिसे गुर्बत, तंगी, बीमारियां, कोई चीज़ न दबा सके हमें, तो मुझे और आपको चाहिए कि हम उस इश्क का हिस्सा बन जाएं, हम उस इश्क का हिस्सा ताबेदारी करके बन जाएं। फिर सारी चीज़ें, फिर आप पे मुश्किलें भी आ सकती हैं, परेशानियां भी आ सकती हैं, दुख भी आ सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए भलाई पैदा करेंगी। सारी चीज़ें ये जो है ना, ये आपके लिए भलाई पैदा करेंगी। आप प्रॉस्पर होंगे, दुनिया हैरान हो जाएगी। दुनिया की हैरानी की वजह ये होगी कि वो देखेगी कि इन पे मुश्किलें, परेशानियां आ रही हैं और ये बड़े खुशो खुर्रम हैं, ये ज़्यादा सरफराज हो रहे हैं, ये ज़्यादा बरकत पा रहे हैं। क्यों बरकत पा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपका जिसके साथ इश्क है, जिसने आपके साथ लव किया है, उसे बाढ़ नहीं दबा सकती, उसे बाढ़ दबा नहीं सकती, और उसे सैलाब जो है वो बुझा नहीं सकता। इसलिए अगर आप देखें ना, इसके लिए आप एक हवाला मैं आपके सामने देखूंगा, रोमियो 8 बाब उसकी 37 से 39 आयत तक, कि जो खुदा के साथ इश्क में होते हैं, जो उसको रिस्पॉन्स करते हैं, उनको कौन कौन सी चीज़ नहीं दबा सकती, उनको किस किस चीज़ की परेशानी नहीं हो सकती। लिखा है, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हम फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको न मौत जुदा कर सकेगी, न ज़िंदगी, न फरिश्ते, न हुकूमतें, न हाल की, न इस्तकबाल की चीज़ें, न कुदरत, न बुलंदी, न पस्ती, न कोई और मखलूक। यानी यहाँ ना एक लफ्ज़ इस्तकबाल की चीज़ें, यानी फ्यूचर। आपको फ्यूचर की परेशानी भी नहीं दबाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आप जिससे लव करते हैं, आप जिससे इश्क करते हैं, आप इश्क कैसे कर रहे हैं? आप ताबेदारी करके इश्क कर रहे हैं, आप ताबेदारी करके उसकी मोहब्बत का जवाब दे रहे हैं, और उसके इश्क में आप एक हो गए हैं। उसे सैलाब नहीं दबा सकता, उसे जो है बाढ़ नहीं दबा सकती, सैलाब नहीं उसे बुझा सकता। जितनी मर्जी मुश्किलें, परेशानियां, हुकूमतें आ जाएं, आपके ख़िलाफ़ कवानीन बन जाएं, लेकिन कोई चीज़ आपको उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकेगी। कैसे नहीं जुदा कर सकेगी? क्योंकि आपने उसकी मोहब्बत का रिस्पॉन्स दिया है। जब आपने उसकी मोहब्बत का रिस्पॉन्स दिया है, तो उसका इश्क कैसा है? वो मौत की मानद ज़बरदस्त है, वो मौत की मानद ज़बरदस्त है, वो आपसे जुदा नहीं होगा। इसलिए तो ना देखें, यीशु मसीह ने एक मकान की बड़ी तारीफ़ की, जिसकी बुनियाद क्या थी? मजबूत थी। उससे बड़े सैलाब आके टकराए, बड़ी आंधियाँ टकराईं। यानी मतलब ये है कि आपकी और मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें, सैलाब, परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन जब हम मजबूत रहेंगे, जब हम कायम रहेंगे। हम मजबूत कैसे होंगे? क्योंकि जब हम मजबूत के साथ जुड़ जाएंगे, जो मजबूत है, जिसने हमसे इश्क किया है, जिसने हमसे लव किया है, जिसने अपना बेटा दे दिया, जिसने अपना बेटा दे दिया, जिसने खून बहा दिया, ये उसके मोहब्बत की, इश्क की इंतहा है जो उसने कर दी है। अब हमारा जो बारी है, जब हमने रिस्पॉन्स दिया ताबेदारी का हर अमल करके, तो फिर हम मजबूत के साथ जुड़ गए, हम मजबूत हो गए, हमारी बुनियाद मजबूत हो गई। फिर इस मकान से आंधियाँ टकराती रहें, इस मकान को कोई परेशानी नहीं, बल्कि इससे आंधियाँ टकराएंगी, ये कायम रहेगा। मैं और आप फिर कायम रहेंगे। और ये मैंने अभी आपको खुदा के कलाम में से बताया है कि पौलुस रसूल का और उसके साथ सिलास जो थे, वो उस इश्क में कायम थे, इसलिए उन्हें कोई बाढ़ ना दबा सकी, इसलिए उन्हें कोई सैलाब ना बुझा सका। फिर आप उसके साथ मिल के एक हो जाएंगे, आप फातेह होंगे, आप गालिब होंगे, जब आप उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देंगे। और आपकी मोहब्बत क्या है? आपकी मोहब्बत ताबेदारी है, आपकी मोहब्बत ओबीडियंस है, ओबीडियंस आपने करनी है। अच्छा, दूसरी बात ना अहम जो है मैं आज आपसे करना चाह रहा हूँ खुदा के कलाम में से, कि इस इश्क को बुझाना कौन जाता है? ये सैलाब कौन ला रहा है जो इस इश्क को बुझाना चाहता है? लिखा है ना कि सैलाब इश्क को नहीं बुझा सकता और बाढ़ उसे नहीं दबा सकती। कौन है और क्यों वो बुझाना चाहता है? बुझाना क्यों चाहता है वो? इस इश्क को बुझाना क्यों चाहता है और कैसे वो बुझाता है? देखें ना, अज़ल से अगर आप देखें तो खुदा इंसान के साथ रफ़ाकत रखना चाहता था, खुदा इंसान से प्यार करता है। पीर तैयब बख्श सलीम साहब यूना के ताल्लुक़ से कहते हैं कि पानी ने
हवा ने, मछली ने, हर चीज़ ने हुक्म माना, लेकिन एक जो शख्स था इंसान, उसने नाफरमानी की, लेकिन फिर भी उससे प्यार किया गया। ये प्रेम कहानी है ना, ये खुदा का प्यार है। और अब बाग़ अदन में भी यही हुआ। खुदा आदम से रफ़ाकत रखना चाहता था, खुदा उससे प्यार करता था, लेकिन वो रफ़ाकत किसने आके तोड़ दी? शैतान ने। क्यों उसने तोड़ दी? क्यों वो इस इश्क को, इस प्यार को, इस रफ़ाकत को वो क्यों तोड़ना चाहता है? क्योंकि वो जानता है कि जब ये रफ़ाकत होगी तो मिलाप होगा, जब ये रफ़ाकत होगी तो मिलाप होगा, प्रोडक्टिविटी होगी, और आगे इंसान पैदा होंगे, ईमानदार पैदा होंगे, शागिर्द पैदा होंगे, डिसाइपलशिप होगी। शागिर्दियत से आप क्या मुराद समझते हैं? जब और ईमानदार पैदा होंगे और शागिर्द पैदा होंगे तो क्या, तो उसे क्या परेशानी होगी? शागिर्द से उसे क्या परेशानी होगी? क्योंकि ज़रूर है कि शागिर्द जो है वो उस्ताद जैसा हो। और उस्ताद कैसा था? उस्ताद के तो मुंह में छल ना था। उस्ताद तो ना झूठ बोलता था, ना धोखाधड़ी करता था, ना लालच करता था। जब और शागिर्द पैदा होंगे तो वो भी ऐसे होंगे, वो भी उस्ताद जैसे होंगे, वो भी उसका सर कुचलने वाले होंगे। और ज़बूर 82, साम 82 उसकी वर्स 6, और इसी तरह जॉन, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 34, यूहन्ना 10 बाब उसकी 34 आयत में लिखा है कि तुम खुदा हो। हम कैसे खुदा हो गए? जब हमने उस इश्क का, जब हमने उस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया, ताबेदारी से दिया, तो फिर हम उसके साथ एक हो गए, फिर हम खुदा हो गए, फिर हम उस्ताद जैसे हो गए, हम ईमानदार हो गए, प्रोडक्टिविटी हो गई, तो और ईमानदार पैदा हो गई। शैतान को मसला हो गया कि ये तो आसमान की बादशाही वसअत पा रही है, शैतान की तारीकी की बादशाही जो है वो श्रिंक हो रही है, और खुदा की बादशाही को जो है वो वास्टस मिल रही है, वो बढ़ रही है। इसलिए वो नहीं चाहता कि ये इश्क कायम रहे, इसलिए वो आपकी ज़िंदगी में सैलाबों को लाता है, परेशानियों के सैलाबों को, गुर्बत के सैलाबों को, बीमारी के सैलाबों को, आजमाइशों के सैलाबों को, एज़ा रसानी के, परसिक्यूशन के सैलाबों को वो आपकी ज़िंदगी में लाता है, ताकि इस इश्क को बुझाया जाए। वो सैलाबों की तरह आपकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन जब आप मजबूत होंगे तो फिर ये आपका कुछ नहीं, फिर ये आपके साथ टकराएंगे और चले जाएंगे। आप मजबूत कायम रहेंगे, दुनिया हैरान होगी कि इनकी मजबूत बुनियाद है। शैतान नहीं चाहता कि और ईमानदार पैदा हों, और इंसान पैदा हों, और कलीसिया बढ़े। और देखें ना, एथियस्ट लोग जो हैं, दहरिये जो हैं, वो कहते हैं कि मसीहत एक बीमारी है, ये बाहर ना निकले, ये चार दीवारी में रहे, उधर इबादत करते रहें, जो मर्जी करते रहें, ये बाहर ना निकले, और ईमानदार ना, कलीसिया और ना बढ़े। जब ये और बढ़ेगी, वो क्या उनके मुताबिक कि ये बीमारी और फैलेगी, और ईमानदार पैदा होंगे। और एक बात आप याद रखें, जो शैतान को, अबलीस को, जो इस इश्क को बुझाना चाहता है, उसे एक और मसला ये भी है, क्योंकि ये पैगाम, यस्सु का नाम और यस्सु का जो ज़िंदगी का पैगाम है, ये मेरे और आपके ज़रिए, किसी और ये ज़रिए से आगे नहीं जाना, मेरे और आपके ज़रिए से इसने दुनिया तक जाना है। इसलिए भी वो इस रफ़ाकत को, इस इश्क को, इस मोहब्बत को तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि वो मुझे इन सलाबों में, आपको इन सलाबों में बहा दे, ताकि हम परेशान हों, हम उस इश्क में कायम ही ना रहें, और यस्सु का नाम, यस्सु का पैगाम आगे दुनिया तक ना जा सके। क्योंकि जब मैं और आप इस इश्क में कायम रहेंगे तो हम बेहतरीन कलीसिया होंगे, और कलीसिया एक बेहतरीन ज़रिया है जो इस दुनिया में मसीह के पैगाम को, मसीह की बादशाही को लोगों तक लेके जा सकती है, और लोगों इस बाढ़ को वो दबाना चाहता है। अगर आप देखें ना, तो पुराना अहदनामा बेवफाओं के किस्सों से भरा पड़ा है, बेवफाई के किस्सों से, बड़ा वाक़यात से भरा पड़ा है। पुराने अहदनामे में खुदा ने उनसे प्यार किया और उन्होंने आगे से बेवफाई की। और जब यीशु मसीह से भी तलाक के बारे में पूछा गया, यीशु मसीह ने कहा किसी वजह से तलाक नहीं हो सकता, जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको कोई जुदा ना करे, वो एक तन है। लेकिन एक चीज़ तोड़ सकती थी, एक चीज़ तोड़ सकती थी, और वो क्या चीज़ थी? वो हरामकारी थी। हरामकारी किसके बराबर थी? मैंने बताया था लास्ट भी कि वो बुत परस्ती, दूसरे को अपना खुदा, झूठ को अपना खुदा बना लेना। और इसी तरह इस इश्क को कौन ख़त्म कर सकता है? तब पहला थेसलोनिकियों 4 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 3, उसमें लिखा है कि चनाचा खुदा की ये मर्जी है कि तुम पाक बनो ताकि हरामकारी से बचे रहो। खुदा की क्यों मर्जी है कि हम पाक बने? क्योंकि खुदा मिलाप चाहता है। पाक बने बगैर, हुक्मों पर अमल किए बगैर, ओबीडियंट
हुए बगैर उसके साथ मिलाप मुमकिन नहीं है। इसलिए अगर आप मैंने अर्ज़ की कि पुराना अहदनामा जो है वो बेवफाई के किस्सों से भरा पड़ा है। जब जब उन्होंने बेवफाई की, जब जब उन्होंने खुदा को छोड़ा, तो जब जब उन्होंने गुनाह किया, झूठ को, दूसरे माबूदों को उन्होंने अपनाया, तो वो इस इश्क से कट गए। ये इश्क बुझ गया, और जब ये इश्क बुझ गया तो फिर क्या हुआ? ज़िल्लत, रसवाई, परेशानी, मौत उनका मुकद्दर बनी। लेकिन जब जब आप देखें, जब जब उन्होंने खुदा की इस मोहब्बत का, इश्क का ताबेदारी से रिस्पॉन्स किया, तो फिर क्या हुआ? इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, हर चीज़ खुदा ने उन्हें दी। अगर आज आप और मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुदा का जलाल देखना चाहते हैं, अगर हम उसकी कुदरत को देखना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि सच्चाई पर कायम हो जाएं। सच्चाई क्या है? सच्चाई खुदा है। सच्चाई उसका बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। उस पर ये इश्क है। कायम हो जाएं, उसके हुक्मों पर अमल शुरू कर दें। ये हमारा रिस्पांस होगा, ये हमारी मोहब्बत होगी। फिर हम इस प्यार में होंगे। हमारा प्यार में ये नहीं कि हम उसके नाम की खातर दूसरों को नुकसान पहुंचाते फिरें। ये गैरत नहीं, गैरत उसके नाम की ये है। इश्क का रिस्पांस, इस मोहब्बत का, लव का रिस्पांस ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। फिर हम ऐसी मोहब्बत में, ऐसे लव में, ऐसे लव का, ऐसे इश्क का हिस्सा बन जाएंगे जिसे सलाब नहीं दबा सकती। कोई दुनिया का सलाब, कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं दबा सकती। यीशु मसीह मेरा और आप सबका हामी और नासर हो। हमारी तमाम वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर अल मसीह चैनल पर मौजूद हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी बरकत पाएँ। खुदा आपके साथ हो।